All right, everybody. These are probability questions without calculator. You can see one thing that there is a new style of possibility diagram in front of you, and we call this diagram as a tree diagram. That's how a tree diagram is. Now, in order to study the tree diagram, you should know that what tree diagram is. With a tree diagram is the representation of the probabilities in a form of a branches. You can see that everybody that this branch, and this branch is linked with this one area. So it means that 2 by 7, 2 by 7 plus 3 by 7, the sum of these three should be equals to 1. You can see that 3 by 5, 2 by 5, it is 5 by 5, which is 1. 3 by 5, 2 by 5, it is also equals to 1. 3 by 5, 2 by 5, it is also equals to 1. हर ब्रांचेस को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, 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 क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। जी कैसे करते हैं जरा देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट लेते हैं तो हमें आइडिया होता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू बैग्स कंटेन बीट्स। The first bag contained two white, two red, and three black. The second bag contains three white and two black beads only. One bead is taken at random from each bag. The tree diagram shown below. Find the probability that both beads are white. So, beta probability of white. So you can see that this is probability of white and this is probability of white. So we will multiply white with white. So that's how we get the probability of white. So we can write the probability of white, which is equals to 2 by 7, multiply with 3 by 5. 2 threes are 6, 7 fives are 35. This is the answer. Arob, I can say that this first white ball is from first bag, and this is the second white ball, it is from the second bag. Understood? Yes, sir. Now they are saying that both beads are red. Both beads are red. So when both beads are red, so you can see that this is red and we do not have any red bead on the right side. So it means that probability of getting both beads red is 0, because you cannot have both red beads in this particular question. Why? Because the second bag is not having any red color. Red color है ही नहीं। बता अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे तो रेड है, लेकिन रेड के बाद आप देखो दूसरे साइड पे व्हाइट और ब्लैक ही है, रेड है ही नहीं दूसरा। सो दो बीड रेड कलर के निकालना इट्स इम्पॉसिबल, तो 0 होगा प्रोबेबिलिटी। They say that exactly one bead is black. Now remember one thing, the statement is not clear. Not clear. क्यों? Why? Because it can be white black, ये white black भी हो सकता है। It can be red black, ये red black भी हो सकता है। And it can be black white, and it can be black white as well. Why? Exactly one bead is black. So हादी यहाँ पे देखो, white black, red black, एंड ब्लैक व्हाइट। अब उन्होंने लिखा है ना कि एग्जैक्टली वन बीड इज ब्लैक, तो हमें ब्लैक व्हाइट लेना होगा, हम ब्लैक ब्लैक नहीं ले सकते। वाई? अगर यहाँ पे होता ना एटलीस्ट वन बीड इज ब्लैक, तो आई वुड हैव काउंटेड दिस ब्रिज एज वेल, मैंने इसको भी काउंट किया होता। चले जी, थ्री पॉसिबिलिटीज हमारे पास। सो white black, so white is 2 by 7 and the black one is 2 by 5, plus the red one is 2 by 7 and after red the black one is 2 by 5, multiply with 2 by 5, plus black one is 3 by 7 and the white one is 3 by 5। थ्री फ्रैक्शन है, तीनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले 2 2s are 4, 7 5s are 35, प्लस 2 2s are 4, 7 5s are 35, प्लस 3 3s are 9, 7 5s are 35। डिनोमिनेटर इज सेम, जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स। रामीन, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे क्या आएगा? 4 प्लस 4 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 इज 17 by 35 इज द फाइनल आंसर 2 मार्क्स के लिए। और ये बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको 2 3 4 नंबर के लिए आया था नॉन कैलकुलेटर पेपर में, जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। बेटा सबको समझ आया? जो जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो उनको समझा देता हूँ। टू बैग्स कंटेन बीड्स। द फर्स्ट बैग कंटेन टू वाइट, टू रेड एंड थ्री ब्लैक। टू वाइट, टू रेड,
3 black, total 7 थे, इसलिए नीचे 7 7 लिखा हुआ. The second bag contains 3 white and 2 blacks, तो 3/5 और 2/5. तो यहाँ पे भी 3/5, यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी 3/5, यहाँ पे भी 2/5. हमने कंप्लीट कर दिया इसको, ये पहले से कंप्लीट था. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीट्स आर वाइट. तो बेटा वाइट और वाइट ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया. कहता है दोनों बोथ बीट्स आर रेड, इट्स इम्पॉसिबल, सेकेंड बैग में रेड है ही नहीं, तो आंसर 0 आएगा. एग्जैक्टली वन बीड इज ब्लैक, तो वन बीड इज ब्लैक, तो ये होगा व्हाइट ब्लैक, ये होगा रेड ब्लैक, ये होगा ब्लैक एंड व्हाइट. क्योंकि ब्लैक ब्लैक नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली वन बीड इज ब्लैक. तो दैट्स हाउ वी फाउंड दिस आंसर. मेरा बेटा सबको समझ आया कि नहीं? यस और नो? यस सर. Yes, sir. थैंक यू सो मच. चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 दे से दैट the numbers 2, 3, 3 and 444 are written on 6 cards. 2 cards are chosen at random without replacement. Okay, without replacement. Acha. This is the keyword. That I will pick the first card and I will hold that first card in my hand to form a 2-digit number. The first card chosen shows the number of tens. Obviously बात है. And the second card chosen shows the number of units. Obviously बात है. हमें पता है कि मैथ्स में ये ones होता है और ये tens होता है. ये हमें आइडिया है. Expressing each answer in its simplest form, find the probability that 2 cards show a number greater than 20. A number greater than 20. तो नंबर ग्रेटर देन 20 आपके पास कितने आएंगे बेटा? तकरीबन सारे ही नंबर ग्रेटर देन 20 आएंगे. यस और नो? जरा चेक कर ले बेटा. Expressing each answer in its simplest form, find the probability that 2 cards shows a number greater than 20. तो बेटा एक बात मुझे बताएं, I can have 23, 23, 24, 24, 24, right Rami? जी sir. I can have 32, 33, 34, 34, 34. Agree? जी sir. I can have 42, 42. I can have 42, 43, 43, 44, 44. A number greater than 20, it is very much obvious. So find the probability that 2 cards shows a number. So the answer is 100% is the chance that you will get the number greater than 20. Any problem? Any problem? Arom, any problem, bacha? No, sir. Okay. Let's proceed there. A number 33. Okay. So first of all, you need to get the possibility diagram. आपको possibility diagram थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ताकि सब क्वेश्चन की समझ भी आ जाए. So please जरा सब pay attention. Saim, you can see that I have 6 cards with the name 2, 3, 3, 3, 4, 4, and 4. Agree? This is also 2, 3, 3. कितने 3 है? 2 3 है. थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना पड़ेगा. जी रामीन, कितने आउटकम्स निकलेंगे वैसे रामीन? Sir 2 2 2 3 फिर 2 3 2 4 2 4 इस तरह से निकलेंगे और फिर 3 2 3 3. आपको क्या लगता है कितने आउटकम्स निकलेंगे इन टोटल? एक मिनट देखने दे. मुझे पता है प्रोबेबिलिटी तुम्हारा वीक है. 36. नहीं 36 नहीं लिखेंगे. इट्स अ विदाउट रिप्लेसमेंट केस. ठीक है. तो if you pick 2 तो you cannot have this 2 2. Agree or not? Because there is only 1 2. Agree or not? 23, 23, 24, 24, 24. Done? Ramin, जी sir. if you pick this 3 2, if you pick this 3, so it can be 3 2, but you cannot have this one because this 3 is out. Agree? But you can have this one 3 3, 3 4, 3 4, 3 4. Now 3 2, you can have this 3 3, but not this one. 3 4, 3 4, 3 4. Now 4 2, 4 3, 4 3, not this 4.
this 4, this 4. 4 2, 4 3, 4 4, 4 4, not this 4 4, and but this 4 4. 4 2, 4 3, 4 4, 4 4, 4 4, not this one. This is the possibility diagram. मैंने एक possibility diagram बना लिया. You can check that there are total 30 outcomes. Every number will have 5 possibilities. 1 2 3 4 5 possibilities आ रही हैं. ठीक है वदान? Out of these number, how Yes, many sir. numbers they are? 33. जरा चेक कर लो कितने 33 है. 1 2 और कोई है? No. So it's 2 by 30. So 1 by 15 is the answer for 1 mark. The number 43 और the number 32. ओके दोनों की प्रोबेबिलिटी है. अच्छा और द नंबर लिखा है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है. ठीक है तो नंबर 43 और द नंबर 32. तो जरा चेक करें बेटा. 32 1 2 32 दो ही है. Probability of 32 is 2 by 30. Okay, probability of 43 is 1 2 3 4. और कोई है बेटा 43? Do we have any other 43? No, sir. No, so there are only 4 43s. So 4 out of 30. So 2 plus 4 is 6 by 30. So add both of them. 2 by 30 plus 4 by 30. So the answer is 6 by 30. Simplify करने की जरूरत नहीं है. पेपर में probability को simplify नहीं करते. जी रामीन बच्चा समझ आइए बेटा बेटा कि नहीं? जी सर. ओके चले जी अभी कंप्लीट करते हैं आपका डायग्राम. इट्स अ ट्री डायग्राम. ऑन अ प्लेट देयर आर 10 बिस्किट्स. एक प्लेट है जिसके ऊपर 10 बिस्किट्स है. 4 ऑफ द बिस्किट्स आर राउंड. 4 बिस्किट्स जो है ना वो राउंड बिस्किट्स है और 6 बिस्किट्स आर स्क्वायर. तो 6 बिस्किट्स जो है वो बॉक्सेस है. ठीक है लाइक दिस. Sabha chooses a biscuit at random from the plate and eats it. She then chooses another biscuit at the random from the plate. The T diagram possible outcomes of the probabilities. Okay, so let's complete that. Beta, Sabha had one round. Sabha ने एक round खा लिया है तो round बच गए हैं 3 by 9. Agree or not? So obviously 6 by 9 are squares. If she adds a square which is 6 by 10, so obviously 5 out of 9 squares are left. So obviously 4 out of 9 they are round. So that's how we complete this. अभी अगर ये कंफर्म करना है वदान तो देखो बेटा 4 by 10 6 by 10 1 आ रहा है. 3 by 9 6 by 9 9 by 9 ये भी 1 आ रहा है. 4 by 9 5 by 9 इनको ऐड करो वो भी 1 आ रहा है तो मतलब ठीक बनाया. Calculate the probability that Sabha chooses two round biscuits. So round 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 multiply with round. तो बेटा round round कितना है? 4 over 10 multiply with 3 by 9. 4 3s are 12. 10 9s are 90. One round biscuit and one square biscuit. Not clear. ये clear नहीं है. So it can be round, square and it can be square round. Agree, Ramin? जी सर. Round is 4 over 10. Square कितना है बेटा? Square is 6 by 9. Plus square कितना है बेटा? Square है 6 by 10. और अब दूसरा बिस्किट उसने राउंड खाया है तो ये 6 by 10 है तो राउंड ये आता है हमारे पास 4 by 9. तो मल्टीप्लाई विद 4 over 9. That implies as 6 4s are 24 divided by 90 plus 24 by 90. दोनों सेम आया. मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते थे वैसे. So the answer is 48 by 90. Do not simplify the probability unless and until it is asked from the examiner point of view. जी बच्चा समझ आया बेटा सबको कि नहीं? समझ आया बच्चा सबको? अलीना? Yes, sir. Yes sir. Any problem बेटा? निखिल? यमुना? Clear है sir. चले that is good. चले जी अभी बारी है थोड़ी सी डिस्कशन की. तो निखिल कैन यू हियर मी? जी सर. जी निखिल माइक ऑन कर ले बेटा अपना. जी जी. अच्छा लूस हैज 3 ब्लैक पेन्स एंड 7 रेड पेन्स. ठीक है जी. तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 3 by 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो व्हाट शुड आई राइट हियर? ये 7 by 10.
Yeah, it's 7 by 10, obviously. पहली लाइन से हमने कंप्लीट कर लिया. He takes 2 pens from the case at random without replacement है. क्या है बेटा? Without यहाँ replacement. पे 10 है तो यहाँ पे obviously 9 हो गए. तो ये 2 by 9 है तो नीचे क्या लिखूं? ये 2 by 8 and नहीं नहीं 8 क्यों? ऊपर 2 by 9 हो चुका है ना. 6 by 9. नो, देखो बेटा यहाँ पे 2 by 9 है तो नीचे जी ऑब्वियसली बात है 7 by 9 है क्योंकि टोटली 9 है यार. जी बिल्कुल. 8 बोल रहे हो. अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस ब्रिज को देखो. ये ब्रिज रेड के साथ अटैच्ड है. This जी bridge is attached with red. Red is 7 by 10. Now one red is out, so it would be 6 by 9. Agree or not? जी sir. If this is 6 by 9, तो upper one is obviously 3 by 9. क्योंकि 1 आना चाहिए दोनों को ऐड करने से. Understood? जी sir, understood. Okay. Find a fraction in its lowest term. The probability that Lewis take 2 black pens. तो black multiply with black. तो निखिल, black multiply करके बताओ black क्या नजर आ रही है तुम्हें? जी sir, 3 by 10 और 2 by 9. Multiply with 2 by 9 बोलो ना. 3 2s are 6 and 10 जी 9s are 90. 1 mark. Done? done sir. अच्छा, लोएस्ट टर्म पे भी करना है. अच्छा, इसको सिंपलीफाई करना है. एग्जामिनर ने क्लियर किया हुआ है. रामीन, आपको नजर आ रहा है बेटा? जी सर. तो ये 6 by 90 को सिंपलीफाई करना है. 6 के टेबल में 90 आता है, ठीक है. और 6 के टेबल में 90 जो है वो 15 टाइम्स आता है, तो इट्स 1/15. 1 मार्क. ओके. अलीना, कैन यू हियर मी? Yes sir. Okay, Alina, look at this part. Louis take 2 different colored pens. Is the statement clear? No. No, it can be black red and it can be red black. Agree or not? Yes sir. So can we find out black red and multiply the answer with 2? It's the same thing. Yes. Okay. So 2 multiply with black red. So what is black? What is black and what is red? Now just tell me. 3 by 10. Yeah, 3 by 10 black. And red is Red is 7 by 9. 7 by 9. So the answer is 2 3s are 6, 6 7s are 42, and 10 10s are 100. 100. So 42 by this is also part B, so we have to simplify this, okay? Because Okay. part B is saying that it is in its lowest term. So let's do it. 21 by 50. I think this is the simplified form. Agree? Yes. So 21 by 50 is the answer. Laluna, assalamu alaikum. How are you after a very long? Laluna, can you hear me, bacha? जी sir. Mic on, right, beta? A bag contains 5 balls, 2 of which are blue and 3 are red. ठीक है भाई? जी. बैग है जिसमें 5 बॉल्स हैं बेटा, जिसमें 3 रेड हैं और 2 ब्लू हैं. वो लिख दिया उन्होंने. ठीक है. 1 ball is taken at random from the bag. बैग से एक बॉल निकाला गया है तो जाहिर सी बात है सेकंड बॉल ब्लू जो है बेटा वो आपके पास 2 थे तो अब वो यहाँ पे 1 रह गया है. ये टोटल 5 थे तो यहाँ पे अब 4 आ जाएंगे. ठीक है लालूना? जी. And this thing is completed already in paper. Okay. Okay. Then they say that if it is red, it is put back into the bag. अगर वो red ball निकलता है ना तो वो वापस डाल देते हैं बैग के अंदर ही. Understood? जी. But if it is blue, it is not put back in the bag. अगर ये blue आएगा तो हम उसको वापस बैग में नहीं डालेंगे. A second ball is taken at random from the bag. Part of tree diagram that represent these outcomes is drawn. So now I have to just complete this tree diagram. Laluna, I have to extend the branches from. Yes, Manahil. Sir, in the previous question, isn't it going to be 3/10 into 7/9 because it's with replacement, without yes. replacement, right? Yes. So Oh yes, that's the mistake. Thank you. It's 7/9, तो यहाँ पे 90 आएगा. तो यहाँ पे इसको हाफ करते हैं 21 और ये 45 आ जाएगा. And 21 and 45 can be cancelled in table 3. So 7 divided by 15 is the final answer. Thank you, Manahil. you're Okay. welcome. And everybody please stay active. अच्छा, अगर इस तरह की कोई मिस्टेक अगर क्वेश्चन में हो ना तो फौरन ही एक्टिव रहा करो. ठीक है. ये हो गया बेटा ब्लू और ये हो गया बेटा रेड. ठीक है. Okay, Manahil, you can see one thing, bacha, that it says that if it is a red, it is put back in the bag, and if it is blue, it is not put back into the bag. And we can see that in whenever you can see that it is blue, so here it is reducing now because that one is in hand. Agree? Yes, sir.
So not in the case of red. Red will stay the same because they are not putting it back. Agree? Yes, it shouldn't be 3 over 4. Which one? The one that we just wrote, because No, it's no, no, no. No, no, no. Like for example, now I picked the ball and it is red. Agree? yes, sir. I'm not keeping it. I'm placing it back in the bag. Now Okay. I'm picking back, so it would be the same thing. Okay. Okay. A second ball is taken at random from the back part of the to complete a tree diagram. Okay, it's completed. Express each answer as a fraction in its simplest form. Find the probability that both balls are taken are blue. So it should be blue, blue, blue multiply with blue. La Luna, first blue is 2 by 5 and the second blue is 1 by 4. So 2 ones are 2 and 2 fives are 20. So it should be 1 over 10 simplest form. Okay, they say that the second ball taken is blue. It is not clear. Second ball the taken is blue. So it can be red blue. It can be red multiply by blue. So red multiply by blue. So 3 by 5 multiply by the 2 by 5. So 3 twos are 6 and yep. Sure. Second ball taken is blue ना, तो blue भी तो होगा. देखो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा करे ये थोड़ा समझ डालें थोड़ा सा कि वो कह रहे हैं कि बोथ बॉल्स टेकन आर ब्लू ये हम पहले ही कर चुके हैं एग्री. अब वो कह रहा है कि द जी सेकंड बॉल टेकन इज ब्लू के सेकंड वाला ब्लू होना चाहिए एग्री. जी सर. ये स्टेटमेंट क्लियर है कि पहले वाला नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड. अच्छा जी. यहाँ से ये लगाओ. अच्छा if अगर ये if it had this previous scenario like that so it would have written that at least one of the ball is blue. Okay. जी. तो तब हम ऐड कर देते तो 3 2 6 and 5 5 are 25 तो 6 by 25 is the final answer. Done. The second ball taken is blue and blue can only be this one. चले जी. कौन कौन बताएगा बेटा ये एज आईपैड किसका है यार. नाम जरा चेंज करो अपना यार. सर ये एक मिनट चेंज करता आप कौन हो. हूँ. सर अरसलान हूँ मैं. अच्छा अच्छा ठीक है चलें. खुशी रीड द क्वेश्चन बेटा. A bag contains 5 balls, of which 3 are red and 2 are blue. One ball is taken at random from the bag and is not replaced. If this ball is red, another ball is taken at random from the bag and is not replaced. This process is repeated until a blue ball is taken from the bag. Part of tree diagram that represent these outcomes is drawn below. ओके अब देखिए जी आपने जिस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा ना 90% इज द चांस था दैट यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम. ठीक है. सो प्लीज बी केयरफुल. आपने स्टेप वाइज लाइंस को पढ़ना है. ठीक है. लाइंस को पढ़ने के लिए क्या तरीका है. अ बैग कंटेन 5 balls and of which 3 are red and 2 are blue. So what I do that रामीन मैंने यहाँ पे कॉर्नर में छोटा सा बॉल बना दिया है. इस पे 3 रेड लिख दिए और 2 ब्लू लिख दिए. आखिर में लिख दिया 5. ठीक है बेटा. तो जब ये मैंने कर दिया तो दिस लाइन इज गॉन नाउ. ठीक है बेटा. जी सर. अंडरस्टूड. अब one ball is taken at random. One ball is taken at random from the bag and is not replaced. So this is it is not it is without replacement case. Okay. So we can get the idea that Arom that this line means without replacement. Agree? जी sir. It means that the first line gave me the diagram, second line gave me without replacement. Understood? Okay, they say that if the ball is red, another ball is taken at random from the bag and it is not replaced. ठीक है. The process is repeated until a blue ball is taken from the bag. तब तक repeat होता है जब तक वो blue ball निकल आएगा. Part of the tree diagram that represent these outcomes is drawn below. Okay, complete the tree diagram. Okay, expresses that the second ball taken is the blue. Okay, अब जरा tree diagram को complete करते हैं. ये यहाँ पे वर्कशीट में बहुत ही congested बना हुआ है. तो यहाँ पे जरा समझ डालें थोड़ा सा कि रेड आउट हुआ तो तभी आगे जाएगा. तो ये हो गया बेटा रेड ब्लू दोबारा निकलेगा. एग्री रामीन. सो रेड वुड बी नाउ 1/3. एग्री. एग्री. जी. एंड ब्लू वुड बी 2/3. एग्री और नॉट. जी सर. If the red ball is then another ball is taken. Agree. So then
you have here 0 and this is 1. That blue is obvious at the fourth pick. Agree or not? Yes or no? Yes, sir. Okay, because they're saying, Alina, they're saying that if this ball is red, another ball is taken at random from the bag and is not replaced. Okay. And if the ball is blue, do not expand because you are done with that. Okay. Yes, sir. इसीलिए ब्लू के बाद एक्सटेंड नहीं हुआ. ठीक है, समझ आएगी अली? Express each answer as a fraction. Find the probability that the second ball taken is blue. The second ball taken is blue है. The second ball is, first ball is red and the second ball taken is blue is right here. So 3 by 5 multiplied by 2 by 4. 3 by 5 multiplied by 2 by 4. The 2s are 6 and 5 4s are 20. तो 6 by 20, तो अब उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई करने का नहीं बोला, तो हम 6 by 20 लिखें या 3 by 10 लिखें, इट्स द सेम आंसर. डेसिमल में मत दे. A blue ball is the second or the third ball taken. Is the second ball or the third ball? तो probability of second, probability of third, दोनों निकालनी है. Probability of second we got it. Agree? Probability of second blue is 6 by 20. We got that already. Probability of third निकालो बेटा. Probability of third blue. तो वदान पहले 2 रेड निकलने चाहिए और फिर ब्लू निकलना चाहिए. अच्छा, तो रेड इज 3 by 5, दूसरा रेड हो जाएगा 2 by 4 और फिर वो हो जाएगा ब्लू है आपके पास 2 by 3. डन डन बेटा, समझ Yes, sir. आया? देख लो यहाँ पे कि पहला रेड, दूसरा भी रेड, लेकिन तीसरा ब्लू होना चाहिए. So 3 2s are 6, 6 2s are 12, 5 4s are 20, 20 into 3 is 60. So 12 by 60 and 6 by 20 we have to add both of them. हमें दोनों probabilities को add करना है. जी बेटा यमुना. सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड बॉल दिया ना, तो सेकंड और थर्ड देखेंगे ना. तो जी थर्ड तो बेटा. वो जो अभी आपने बनाया, जी थर्ड तो तो मैंने फर्स्ट बनाया, क्यों फोर्थ दिया? बना दिया था. देखा आपने? जी तो उन्होंने कहा कि सेकंड पार्ट में कहता है अ ब्लू बॉल इज टेकन एट रैंडम, अ ब्लू बॉल इज द सेकंड और द थर्ड वन. सेकंड वन की हमने प्रीवियस पार्ट में निकाल ली है, देखिए ना आपने. जी जी. तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ब्लू निकाली है, तो मतलब पहले 2 रेड निकालने हैं और फिर ब्लू निकालना है. तो ये 2 रेड निकले तो ये ब्लू निकल गया. ठीक है, ओके ओके. अब इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर दो 12 by 60. अब क्योंकि ये पेपर 1 है, डिनोमिनेटर सेम करें या बटरफ्लाई मेथड करें, आपकी मर्जी है. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए, इजी रहेगा. तो ये हो जाएगा 6 3s are 18 by 60 प्लस 12 by 60. तो ये आ जाएगा बेटा 30 by 60. 30 by 60 is 1/2. एग्री रामीन? जी सर. जी समझ सही. आया बेटा सबको? अभी हम ऊपर बॉल्स वाला नहीं कर रहे थे, ब्लू बॉल वगैरह जो ऊपर अभी क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला जी. ये वाला. हाँ सही. जो इसका बी का लास्ट पार्ट नहीं, जब भी मैं आपसे पूछ रही थी द सेकंड बॉल इज ब्लू ना, इसका आंसर मार्किंग स्कीम में 17 by 50 है. क्या है बेटा? 17 by 50. 17 by 50 है इसका आंसर मार्किंग स्कीम में. जी सर. हालांकि यहाँ पे सेंटेंस बहुत क्लियर है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that the second ball taken is blue. So this statement is clear that the second ball is blue, not the first one. Agree? अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कैम्ब्रिज में बहुत पुराना है, 2014 का क्वेश्चन है, 11 years ago क्वेश्चन है. ठीक है, जी सर. तो अभी आपको कैम्ब्रिज में जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो इट विल नॉट हैव एनी डाउट, वो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देंगे. ठीक है, जी सर. तो अभी हम बच्चों को इस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं. समझ आई आपको? जी सर. ये देखिए 2014 का क्वेश्चन है. 2014 में प्रोबेबिलिटी को बहुत इवॉल्व किया है, उन्होंने सिलेबस बहुत चेंज किया है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई है बीच में, ट्री डायग्राम्स आए हैं, पॉसिबिलिटी डायग्राम्स आए हैं बीच में. ठीक है, तो ये पुराने सेंटेंसेस हैं, जबकि देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है. हाँ उस टाइम पे ऊपर जो है ना, उस टाइम तो हम खुद स्टूडेंट थे, तो माइट बी देयर इज अ चांस कि उस टाइम पे जब ये फॉर एग्जांपल द सेकंड बॉल टेकन इज ब्लू, उस टाइम पे ये लोग ऐड करते हो प्रीवियस वाला भी, लेकिन मेरे मुताबिक ऐड नहीं करना चाहिए था. क्यों? क्योंकि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल टेकन इज ब्लू, दिस इज क्लियर टू मी. एग्री? जी सर.
फिर हो सकता है कि इन्होंने वो पिछले वाला आंसर इसके साथ ऐड किया हो। आप जरा 6/25 के साथ 1/10 को ऐड करो, क्या आता है? सर मैंने ऐड करके देखा है तो वो 17/50 आ रहा है। वो आ रहा है ना आंसर, बस फिर इसका मतलब है कि इन्होंने ऐड किया होगा इसके साथ, ठीक है। जी सर। अभी आपने रीसेंट क्वेश्चंस में आप देखोगे ना, तो रीसेंट क्वेश्चंस में भी हम आहिस्ता आहिस्ता रीसेंट पे जा रहे हैं। देखो 2015 पे पलट गए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जी चलें, a bag contain red counters, blue counters and yellow counters. So there is a bag and there are 60 counters in the bag. So around there are 60 counters, so I will write 60 outside. The probability that the counter taken at random from the bag red is 2/5. Okay, red is 2/5 of 60. तो 2/5 of 60 कितना होता है बेटा? 120/5. तो 120 को 5 पे डिवाइड करें, कितना आता है बेटा? 5 1 5, और यहाँ से भी कर सकते थे, 24 आता है। 24 रेड्स है बेटा इसमें, यमुना। The probability that a counter taken at random from the bag is blue is 5/12. तो blue कितना है बेटा? 5/12 of 60 होगा। 12 ones are 12 and 12 fives are, तो 5 fives are 25 blues आ रहे हैं, ठीक है यमुना। रेड ones are 24, Yes, sir. blue ones are 25. तो फाइंड हाउ मेनी येलो काउंटर्स आर इन द बैग। तो येलो निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 60 - 24 - 25, तो 60 - 49। तो 60 - 49 is 11 yellow balls. Understood? Understood बच्चा? चलें जी, next question. The Paul takes an examination in maths and physics. The probability that he passes math is 0.7. So the probability of failing maths is how much? 0.3, because total probability is 1. The probability that he passes physics is 0.6. Probability of failing physics is 0.4, because total probability 1 होती है, ठीक है अलीना? Ali, Ayla, understood Ayla? Okay. The results are in each subject are independent of each other. Okay. Calculate the probability that he passes math but does not pass physics. Okay. Maths pass, multiply with physics fail. Physics fail. But a passing maths is 0.7, but failing physics is 0.4. 0.7 multiplied with 0.4 is what? 7 fours are 28, 2 decimal place. So 0.28 is the answer. जी रामीन, समझ आया बेटा आपको? जी सर। अब देखें जी, in this question everybody, the probability he passes math was given. I found it by subtracting in from 1, because we know that total probability is 1. Total probability कितनी होती है अली? 1. Total probability is 1. अच्छा, फिर यहाँ पे इसी तरह हमने फिजिक्स वाली भी निकाली कि 0.6 पास करता है तो 0.4 मतलब फेल करेगा। ओके, A fair four-sided spinner. Okay, fair four-sided spinner कुछ इस तरह का होगा। फेयर का मतलब है ना कि इक्वल नंबर ऑफ चांसेस आते हैं इसके, फिर तो 1 2 3 4 है, ठीक है। Anil spins it once. He get his scores by doubling the number obtained. Complete the table to show the probabilities of his scores. ठीक है, कि 2 कितनी दफा आएगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं कि देखें, अनिल स्पिन इट वंस, उसको 1 मिलेगा तो 1 को डबल करेगा तो तभी 2 आएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके, हाउ ही विल गेट 4? 4 उसको कब मिलेगा बेटा? जब वो 2 को डबल Sir, जब करेगा। 2 को डबल ओके, 6 कब मिलेगा? जब वो 3 को 3 डबल को करेगा। और जब 8 कब मिलेगा? जब वो 4 को डबल करेगा। एग्री और नॉट? इसका मतलब क्या है कि दे हैव ऑल इक्वल प्रोबेबिलिटीज, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं। क्यों इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं रामीन? बिकॉज डाइस जो है वो फेयर है। क्या है बेटा? फेयर है सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी रामीन? रामीन, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा? एनीवन, कोई भी बता दे यार। गलत बताओ लेकिन बताओ सही। टोटल 4 चांसेस हैं, टोटल आउटकम्स 4 हैं। टोटल आउटकम्स आर 2/4। हाँ 2/4।
No, it's 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. सबको ऐड करोगी तो 4/4 आ जाएगा। अंडरस्टूड? सर पहले वाली यस। की समझ आएंगे, बाकी किस तरह किया, लाइक 1/4 आपने। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि डाइस इज अ फेयर फोर साइडेड, ठीक है, सबका इक्वल चांस ठीक आता है, ठीक है। वो कहता है कि अनिल स्पिन्स एट वंस, अनिल ने एक ही दफा घुमाया है, ही गेट हिज स्कोर्स बाय डबलिंग द नंबर ऑफ 10, अगर उसका 1 आएगा तो उसको डबल करेगा तो 2 आ जाएगा। एग्री? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी यस 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी 1/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी 1/4 है। एग्री? क्योंकि टोटल आउटकम 4 है, यस हर एक का इक्वल चांस है। एग्री? यस Okay. Now they say that Billy spins it twice. She gets his score by adding the number obtained. Complete the probability. वो 2 दफा घुमा रही है, ठीक है। जरा गौर करें, इन्होंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा 1 1 2 3 4 2 3 4। अच्छा जी, सब देखें जी। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। अब सबको ऐड किया हुआ है उसने। लास्ट रो को देख लें खाली, बस अब लास्ट रो हमने कंप्लीट करनी है। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7 एंड 4 + 4 8। वो सिर्फ ऐड करती है, उसने 2 दफा घुमाया है, हमने कंप्लीट किया। ये आ गया जी 1 मार्क का आंसर। ओके। देयर आर हाउ मेनी आउटकम्स? टोटल आउटकम्स आर, अरोम, हाउ मेनी आर द टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स आर 16। हाउ आई फाउंड इट आदि? 4 8 12 16, टोटल 16 है। ओके। स्कोर ग्रेटर देन 2, 15/16। ग्रेटर देन 4 कितने हैं बेटा? ग्रेटर देन 4 काउंट करो। ग्रेटर देन 4 कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ग्रेटर देन 4 कितने हुए बेटा? 10/16। बेटा ग्रेटर देन 6 कितने हैं? काउंट करें। काउंट ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े। 1 2 3, इट्स 3/16। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 कितनी है बेटा? 0 सर। वेरी गुड, इट्स 0। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चा? समझ आया सबको? यस सर। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल, कि बिली का जो स्कोर है वो अनिल से ज्यादा वो स्कोर करता है, ठीक है। सो अब एक बात मुझे बताएं कि अनिल जो है, अनिल के पास जो स्कोर्स आ रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल सेम आ रही थी, 1/4 1/4 1/4 1/4। एग्री और नॉट? यस और नो? यस और यस नो? ओके, सो नाउ चेक। पहले स्कोर 2 को चेक करो। स्कोर 2, स्कोर 2 चेक करो। अनिल की स्कोर 2 थी 1/4, एग्री, विच इज 0.25। एंड बेटा बिली का स्कोर है बेटा 15/16, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर। यस और नो? 15/16 is Billy's score. It is what? Billy score, which is greater than 0.25। ये 0.25 से बड़ा है, बिकॉज 15/16 जो है वो ऑलमोस्ट 95-99% होगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? यस और नो? यस सर। अंडरस्टूड? यमुना, यमुना, यस लालूना, सर। मनाहिल, रामीन, मनाहिल, कैन यू हियर मी? बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. ओके। सो बेटा यहाँ पे ये जरा चेक करेंगे प्लीज सब, के जो अनिल का जो स्कोर है वो 1/4 1/4 1/4 1/4 इक्वल चांसेस आ रहे थे हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, वो एक ही दफा स्पिन कर रहा था और वो जो भी स्कोर आता था उसको डबल करता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो थी वो 1/4 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो थी वो भी 1/4 आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी 1/4 आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 भी 1/4 है। मतलब इक्वल चांसेस हैं, जिसको हम मैथ्स में कहते हैं 25% 25% 25% 25%। जी मिनाइल। सर यहाँ पे मगरिब का वक्त हो रहा है, तो क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ इसकी रिकॉर्डिंग लेके? मतलब हाँ ठीक है, ठीक इसकी है, बस रिकॉर्डिंग ऐसी ले नहीं, लूँ? ऐसी ऐसी है, आप अपना जाके अफ्तारी करो, ठीक है।
आप अपना Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके चले जी, हम लोग कहाँ थे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल, के वो अनिल से ज्यादा स्कोर करेगा। अब जरा यहाँ पे देख लें बेटा कि उसके अनिल के जो स्कोर्स हैं वो 8 के ऊपर आए गए हैं, और वो आ गए हैं। उसने क्या किया है, उसने बस जाहिर सी बात है कि उसका 25% इक्वल चांस है, क्योंकि वो एक ही दफा स्पिन करता है, जो भी स्कोर आता है वो उसको डबल कर देता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? फिर वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल, और आपको नजर आ रहा है कि ग्रेटर देन 8 उसका कोई भी नहीं होगा, 8 उसका बिल्कुल मैक्स पॉइंट रहेगा, क्योंकि 8 उसके पास भी एक ही है। ठीक है, 8 उसके पास भी एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी बनती है बिली की बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, स्कोर 4 देख लो, दोनों सारे देखो, डिस्कशन करो, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। स्कोर 4 अनिल का 1/4 है, एंड 1/4 इज 10/16। अब 10/16 बनता है 5/8, 5/8। 1/4 इज अगेन लेस देन 10/16। फिर दूसरा है 1/4। अब 1/4 इज 3/16। अब 1/4 3/16 से बड़ा है। एग्री और नॉट? क्यों बड़ा है बेटा? अगर ये 4/16 होता तो ये 1/4 होता। ठीक है, अब ये 3/16 है, इसका मतलब है कि 6 वाले जो स्कोर्स हैं वो अनिल के ज्यादा आएंगे। ठीक है, और 8 वाले स्कोर्स भी जो हैं वो उसके 25% चांस है, और इसके पास सिर्फ एक ही बनता है, वो भी 8 वाला, वो अभी हमने यहाँ पे देख लिया है। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि जब भी आप 2 दफा स्पिनिंग कर रहे हैं किसी भी स्पिनर की, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बड़ी रेयर हो जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी स्कोर आ गया आप उसको डायरेक्टली डबल कर लेते हो, लेकिन 2 सिक्सेस अगर लेना हो तो फिर डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग कल यहाँ यहीं से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से इसी इसी पार्ट से हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्योंकि क्लास सर में से काफी बच्चे चले गए हैं, तो फिर मजा नहीं आता जी। सर, तो फिर इसका आंसर क्या हुआ, ये जो बस भी इसका आपने आंसर पार्ट फिर मैं कराई? अभी आपको कल ही समझा दूंगा, क्योंकि ये काफी डिटेल डिस्कशन है और काफी सारे बच्चे चले गए, और कल फिर उनको रिकॉर्डिंग में नहीं समझाए, समझ आएगी। ठीक है, Allah Hafiz. मैं ये आप लोगों को पीडीएफ भिजवा रहा हूँ, इस पर से बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें, और फिर कल मैं ये खत्म भी करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। सर मुझे एक और बात करनी थी। जी जी बच्चों बोलो। सर मैंने जो है रिकॉर्डिंग देखी ना,